First of all, let's see the syllabus. You can see our syllabus. First unit is completed. Second unit is about EI diagram. It is completed. Third one, relational algebra, operators. That is completed. And now fourth one, domain independency and Armstrong's and normal forms, that we are going to start. And fifth is remaining. It requires in this chapter only one question was asked in each and every previous year paper. If you observe steps of query processing, and जब हमने सोल्व किया तब आपने आइडेंटिफाई किया, ऑब्जर्व किया होगा, तो आपको पता है कि एक ही क्वेश्चन था कि स्टेप्स ऑफ क्वेरी प्रोसेसिंग, एंड दैट वाज इजी. तो ये फिफ्थ यूनिट है. सिक्स्थ वन आप डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, इंडेक्सेस, बी ट्रीज एंड हैशिंग्स. सेवंथ वी हैव कंप्लीटेड. ठीक है. Concurrency control, AC property, serializability, locking, time step based schedule, multi-version control scheme, database and recovery. 8.1 database security. It requires only 2 or 3 lectures, minimum 2 lectures or maximum 2 lectures. उसमें एक एक IMP है. एक्सेस कंट्रोल, DAC, MSC, 2 एक ही पूछते हैं, और बाकी सब शॉर्ट में, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन. अब तक कैसा था कि पूरा यूनिट आईएमपी में बोल रहा था. नाउ ऑनवर्ड्स कैसा है कि पूरे यूनिट में एक दो क्वेश्चन ही ऐसे है कि जो आईएमपी है और जीटीयू में फ्रीक्वेंटली पूछते हैं. ठीक है. एसक्यूएल तो हमने खत्म कर दिया लैब में. ठीक है. और पीएलएसक्यूएल में ये 4 है, ये 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा. तो हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट वी आर एबल टू कंप्लीट इट नियर बाय टाइम. So we can focus on it. यहाँ पे fourth unit में Armstrong axiom is the important thing, and second one is the normal forms. Both are the important, most important. Normal forms आपने देखा कि सभी पेपर में था ही था, जैसे ये डायग्राम था ऐसे नॉर्मल फॉर्म्स में था. ठीक है. Armstrong कभी कभार पूछ लेते हैं. ठीक है. बट नॉर्मल फॉर्म्स अंडरस्टैंड करने के लिए आपको बेसिक फंडामेंटल्स सीखने पड़ेंगे. क्लियर? So do not worry, we are able to complete the syllabus within a time, or we can say before a time. Now fourth unit about the relational database design. So in the first unit we have seen the architecture, in a second relational algebra and operators, in the third EI diagram. It means that is the database design, relational database design in terms of pictorial or graphical representation. But in the second unit we have seen relational algebra. It means tables. After making the tables, if it can be reduced, then we must have to reduce. आपके पास कोई डेटाबेस ऐसा है टेबल्स कि जो रिड्यूस हो सकता है, उसमें बहुत सारे डेटा रिपीट हो रहे हैं, डुप्लीकेट हो रहा है, या फिर बहुत लंबा है टेबल, तो उसको आप जितना हो सके उतना डिजाइन को रिड्यूस कर सकते हो. रिलेशनल इट मींस टेबल्स. सो डेटाबेस डिजाइन रिड्यूस कर सकते हो, उसके लिए नॉर्मलाइजेशन कांसेप्ट है. So we will see functional dependency, closure of FD, closure of attribute, extraneous attributes, canonical cover, finding a candidate key, decomposition, database anomalies, and normal forms. Let's see one by one. Functional dependency. Am I audible and is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Functional dependency. So first of all, why we require this functional dependency? Functional dependency is required to
to normalize the table, not to normalize the relationship. Normalize it means we can reduce the unwanted or unnecessary data. So let's consider this one is the table, or we can say the relation, student relation. In that we have attributes, roll number, name, SPIN, backlog. Two tuples we have: 201 Rajesh, 81, 202 Krishna, 63. Clear? Let R be a relation schema having the n attributes A1, A2, A3, and AN. So here, student is the relational schema having a 4 attributes: roll number, name, SPI, backlog. Let M and N be the subset of attributes of relation R. It means M and N both are the set of attributes of relation R. For example, M is equals to roll number and name, and N is equals to SPA. So these both are the attributes of a relation, any subset of that relation. Just 1 minute. So if the values of M component, generally M and N, it is known as A and B, or maybe alpha and beta. If you refer some reference book or online, then you will find a different name. That is the naming convention only. But meaning is that alpha or beta or M and N, whatever you say, it doesn't mean. If the value of M component of a tuple distinctly determine the values of N component, then there is the function dependency from N to N. Mathematical में आपने देखा A tends to B, alpha tends to beta. So here it is known as the M tends to N. Are you getting? If first of all, are you getting what I am trying to say? Alpha tends to No, beta. sir. Sir, sound sound. Sir, your voice is breaking, sir. Now is it clear? Yes, sir. My voice is Yes, clear? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, I am trying to say A tends to B. I have pasted in the chat that that is our with you A tends to B. Mathematics में आपने कई बार यूज किया है A tends to B. उसका मतलब आप कोई एक्सप्लेन कर सकता है? Yes, sir. Yes, sir. यस अभिषेक, Yes, sir. एक टेन ये दोनों अभिषेक टू की बी की मतलब यस सर, एक टेन टू बी का मतलब होता है ए अग्रसर है बी की ओर. Sir. Sir, may Sir. अभिषेक तिवारी पहले बोलेगा. सर ए टेंस टू बी का मतलब हुआ कि जो ए है वो बी की ओर धीरे धीरे इंक्रीमेंट कर रहा है सर, और वो ना मतलब एक मतलब हद तक जाके बी हो जाएगा सर. नहीं, ऐसा नहीं होता है. आप मैं गलत Sir, गलत A is समझे हो nearly या equal फिर to गलत B. सोचे हो. दिव्यांशु Hello, जस्ट वन बाय वन. हर्षित का पहले टर्न है. Sir, it means that A is asymptotic of B, sir. Okay. Now Divyanshu. Sir, A is nearly equal to B, approaching to B. Is nearing. Okay. Udit. हेलो सर, ए बी के तरफ अप्रोच कर रहा है सर. Approach कर रहा है. Okay. Anything else? Abhiraj. Sir, also yes, sir. One by one बोलोगे. Wise of Abhiraj, your voice is breaking. So we are not able to hear you. Yes, Rabindra. A approach to B you have pasted in the chat. Yes, sir. Anyone? Any other students? सर ए some relation between A and B, and A is nearly going to be I can say that merged with B, not exactly with B, but can be equal to B. सर Not- ए इज नियरली इक्वल टू बी सर.
Not nearly equal to B. Mathematics, just 1 minute. Just I don't know whether you are right or wrong. I am not saying that thing. But आप जो बोल रहे हैं वो अभी A tends to B का मतलब सही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. A is approaching to B or whatever. Yes, Brajesh. Sir, if A is true, then B is true. So logical expression. Okay. Brajesh, आप क्या बोल रहे थे? सर ए टेंस टू बी का मतलब सर मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में होता है कि सर लिमिट जो है एक्स टेंस टू बी की ओर अगर जाता है तो उसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू जो होता है वो नियर बाय होता है, जो कि सर उसमें जो इंक्रीमेंट होता है वो सर डिपेंड करता है ए पे, जो वैल्यू पहले टेंस टू कर रहा है, तो वो जो है अप्रोक्सीमेशन से मतलब क्लियर होता है सर. ठीक है, चलो आपको सबका आंसर सेम है, तो आप मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन हियर A टेंड्स टू B का मतलब A is functionally dependent on a B. A is functionally dependent on a B. It means we can say that yes, Ravindra, are you trying to say something? सर स्क्रीन विजुअल नहीं है. Yes, नहीं है, स्क्रीन विजिबल नहीं है, ठीक है, अभी थोड़ी देर के बाद करेंगे. A tends to B, it means it's a function. A is functionally dependent on a B. In that, we can say that A is the determinant and B is the dependent. It means B is dependent on a. B is dependent on a. In another way, we can say that B is searched by the A. We can compute or we can search the value from the A. Let me save. So it is denoted by M tends to N. It means if the value of M component of a tuple distinctly determined, distinctly it means uniquely determine the values of M component, then there is the functional dependency from M to N, and it is denoted by M tends to N, where M is known as the determinant and N is known as the dependent. Okay, before going ahead, let me inform you, you will get lots of doubts, maybe. I will try my best, because this one is totally mathematical and all these things. For that I required a board, and so it is not visible in this online class, so I am trying to give my best. So if you find any difficulty and if you have any doubt, then you can ask anytime. Clear? Anytime. It means if I am saying I'm discussing some points, so let me finish that point and then you can raise your question. Clear? ये आप आपके पास बोर्ड होता, बोर्ड पे होता तो मैं अच्छे से इससे ज्यादा भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि दिस वन इज दी बेस्ड ऑन दैट. सो ऑल्दो आई विल ट्राई माय बेस्ट, एक भी छूटेगा नहीं. If the values of M, if the values of M component, it means left side जो आपका है M component, वो uniquely determine करेगा N component को, then there is functional dependency. It means a dependency from N to N. We can say that FD, functional dependency, short form is FD. It is denoted by M tends to N. It means N is the determinant part or N is the dependent part. Clear? N is the dependent part. N is the determinant part and N is the dependent part. Or in another way, for your understanding, do not write this this statement into a paper. But for your understanding, we can say that B is it means N is not calculated from the M, or we cannot say that N is not computed from M, but we can say that N is searched from the M. It means, for example, in upper table, what is the value?
Okay, SPI is 8 and roll number is 201. So SPI is dependent on what? Roll number. If I say, अगर मैं बोलूं 8 SPI तो आपका कुछ पता नहीं चलेगा कि सर क्या बोल रहे हैं. मैं बोलूं रोल नंबर 201 तो भी आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि वो इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स है. इफ आई से रोल नंबर 201 का SPI 8 है तो आपको पता क्या चलेगा कि 201 राजेश है, उसका 8 SPI आया है. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? SPI डिपेंडेंट ऑन व्हाट? रोल नंबर. SPI is dependent on roll number. तो that is the functional dependency. रोल नंबर से हम पता कर सकते हैं SPI कितने हैं. ठीक है. सो ऐसा जरूरी है कि n की 2 वैल्यू के लिए हमें n की एक वैल्यू मिल सकती है. फॉर एग्जाम्पल 201 के भी 8 SPI आ सकते हैं, 202 के भी 8 SPI आ सकते हैं और आते ही है. ठीक है, लेकिन m की एक वैल्यू के लिए n की 2 वैल्यू नहीं मिल सकती. फॉर एग्जाम्पल m की एक वैल्यू मीन्स 201. 201 के 8 SPI भी है और 9 SPI भी है. ऐसा कैसा पॉसिबल हो सकता है सेकंड सेम में? नहीं हो सकता है ना. सो दैट इज नॉट अ वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी. clear up to this? Clear? Any query? Yes, sir. Any students is having any query, then you can ask. Udit is testing, meaning m can have multiple values independent of n. Yes, definitely. That I told you. In general way, if I am writing x tends to y, ऐसा लिख रहा हूँ मैं, x tends to y, तो हम जनरली ऐसे ही बोलते हैं कि x की 2 वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू मिल सकती है, सेम वैल्यू मिल सकती है, लेकिन रिवर्स नहीं हो सकता. ठीक है. उसका मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूं, standard real life example. Now whether it is possible or not in some state or some case it differs. हम जनरल वे में बात कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल हाउस A is dependent on owner B. That is functional dependency. House A tends to owner P. It means house A है वो उसका owner P है. Then valid functional dependency. Now house B दूसरा जो मकान है उसका owner P है तो वो भी वैलिड है क्योंकि आपके मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो सकती है. ठीक है. सो उस मल्टीपल प्रॉपर्टीज के लिए सेम ओनर वैलिड है, लेकिन हाउस ए का ओनर आप है और हाउस ए का ओनर मैं भी हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि आपकी एक ही प्रॉपर्टी में मल्टीपल वैल्यू नहीं हो सकती. जो मैंने 201 का बोला एग्जांपल वही, 201 में 8 SPI और 9 SPI नहीं हो सकता, एक ही SPI हो सकता है, इधर 8 और 9. ठीक है, देन इट इज इनवैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी. Hello, sir. Hello. Okay. So 1 minute, I have urgent call. Sir, one question.
Am I audible? Sorry for disturbance. यस सर। Yes, sir. Audible, sir. Okay, screen is visible or it's not visible? No, sir. No, sir. Okay, just let me save this screen. Excuse me, sir. हाँ, कोई पूछ रहा था क्वेश्चन? Yes, sir, रवि. हाँ, पूछिए. सर जैसे आप बोले m टेंस टू n है तो यानी सर m जो है वो डिपेंडेंट है n पे, राइट? n डिपेंडेंट है, m नहीं. यस सर. m तो हम ऐसा कर डिटरमिनेंट, m डिटरमिनेंट है. अभी अब एक बार Independent. मैं एक्सप्लेन कर दूं. एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं सबको. m टेंड्स टू n है, उसका मतलब क्या हुआ? m इज डिटरमिनेंट एंड n इज द डिपेंडेंट. आप एरो में देख सकते हो कि m जो है वो n को सर्च करेगा. m है जो n को सर्च करेगा, इसलिए n इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? m. क्लियर? आपको अगर m और n में दिक्कत हो रही है तो मैं a और b से एग्जांपल ले लूं. रुको, हाँ, तो आपको पता चले. a जस्ट 1 मिनट. एम और एन दोनों प्रोनाउंस में एक जैसे लगते हैं, तो किसी किसी स्टूडेंट्स को गलती हो सकती है, इसलिए मैं अभी एग्जांपल दिए चेंज कर रहा हूँ. ठीक है. Okay, I have changed the m tends to n, here a tends to b, so we can say that a b को सर्च करेगा, b a को नहीं सर्च कर रहा है, इसलिए आप बोल सकते हो b किस पे डिपेंडेंट है? a पे. b खुद से तो कुछ नहीं कर सकता. यहाँ पे देखो, SPI में बोलूं 8 और 6, क्या है? उसका कोई मीनिंग नहीं है. ठीक है. a बोलूं रोल नंबर, तो उसका भी कोई मीनिंग नहीं है. रोल नंबर से कुछ हम हासिल नहीं कर पाएंगे. लेकिन मैं ये बोलूं कि रोल SPI 8 है, उससे रोल नंबर 201, SPI टू रोल नंबर, तो वो फंक्शनल डिपेंडेंसी वैलिड नहीं होगी. ठीक है, क्योंकि हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी वैलिड की कौन सी होगी? रोल नंबर टू SPI 201 के 8 SPI है. ठीक है. सो A, we can say that A is the determinant part and B is the dependent. B is the dependent on what? A. ठीक है. ऐसे. Now you can ask the question. सर बीज इंडिपेंडेंट क्या होगा सर? वन बाय वन. क्या बोले? अभिषेक भी इंडिपेंडेंट है. हाँ, आगे कुछ बोलो. You are not audible. Your voice is breaking. रवि पूछ रहा था सर. क्या बोल यस सर. जैसे आप बोले वो इस पे डिपेंडेंट है, तो सर अगर 8 किसी का SPI है तो उसका 2 रोल नंबर हो सकता है, पर एक रोल नंबर का 2 SPI नहीं हो सकता, राइट? या राइट. Yes, Abhishek, B is a we can say that B is a subset of A. You can say that, yes, but in the functional yes, Pankaj is writing something that is correct. B on dependent A. Yes, B is depend on A. Yes, correct. सर बी डिपेंडेंट ए पे नहीं होगा सर. बी इज इंडिपेंडेंट होगा क्योंकि ए इज फंक्शनल डिपेंडेंस टू बी हो रहा है सर. तो मुझे इसका आंसर बता दो कि आप SPI डायरेक्ट कैसे सर्च करेंगे? बैकलॉग सर्च कैसे करेंगे? कुछ इस साइड लेफ्ट साइड डिटरमिनेंट होगा तो वो आपको सर्च करके देगा, इसलिए वो डिपेंडेंट हुआ. सर लेकिन मैथमेटिकली देखे तो सर आपने बोला कि ए इज फंक्शनली डिपेंडेंस टू बी, तो इससे पता चलता है कि बी फंक्शनल इससे पता चलता है कि बी इंडिपेंडेंट है. फंक्शनल डिपेंडेंसी बोलने में ऐसे ही बोले जाते हैं कि A टेंड्स टू B. उसका मतलब ये हुआ कि B इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन A, ऐसे बोलते हैं. लेकिन FD किसको बोलते हैं? A टेंड्स टू B को फंक्शनल डिपेंडेंसी बोलते हैं. डिटरमिनेंट पार्ट है
वो टेंड्स टू डिपेंडेंट पार्ट। डिपेंडेंट पार्ट ऑलवेज, डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, किसी के ऊपर निर्भर है, तो बी किसके ऊपर निर्भर है, ए के ऊपर, सो बी डिपेंडेंट ऑन डिटर्मिनेंट ए। क्लियर? क्लियर सर। सर या सर इट मींस सर ए की एक ही वैल्यू हो सकती है, बी की मोर देन वन वैल्यू। बी की मोर देन वन वैल्यू नहीं, क्योंकि ए इंडिपेंडेंट सर बोल रहे हैं। सर तो ऐसा होगा ना कि बी की मतलब वो भी सकती एक इनपुट का, है सर, नहीं हो सकती है ना। दो इनपुट का एक मान लीजिए सर उसका हम टाइप पढ़े हैं। हो सकता है, पर एक इनपुट का दो आउटपुट नहीं हो सकता। आप तीसरा पॉइंट रीड कीजिए फिर से। इफ द वैल्यू ऑफ m component of a tuple distinctly determine the values of n component, then there is the functional dependency from m to n। उसका मतलब क्या हुआ, a to b फंक्शनल डिपेंडेंसी कब बोलेंगे हम, a डिस्टिंक्टली डिटरमाइन करेगा b की वैल्यू, तो उसको हम a to b फंक्शनल डिपेंडेंसी बोलेंगे। इतना आप अभी इतना याद रखो। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि मैथमेटिक्स और ये फंक्शनल डिपेंडेंसी में ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। ओके, आप उसके बाद में आपके क्वेश्चन लूंगा, पहले ये आप समझो। एग्जांपल दिया है, अबव रिलेशन रोल नंबर टेंड्स टू नेम कोमा एसपीआई कोमा बैकलॉग। उसका मतलब क्या है, रोल नंबर इज द ए एंड बी के अंदर तीन एट्रीब्यूट्स है, नेम कोमा एसपीआई कोमा बैकलॉग, तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गई आपकी। ठीक है, मे बी हो सकता है रोल नंबर टेंड्स टू एसपीआई और बैकलॉग, मे बी रोल नंबर टेंड्स टू नेम। फंक्शनल डिपेंडेंसी कोई भी हो सकती है। और दूसरा मैंने ये भी बोला कि m की दो वैल्यू के लिए n की एक वैल्यू मिल सकती है। m की दो वैल्यू के लिए x की एक वैल्यू मिल सकती है, लेकिन x की और m की एक वैल्यू के लिए n की दो वैल्यू नहीं मिल सकती, क्योंकि आप यहाँ पे तीसरे पॉइंट में क्या लिखा है, डिस्टिंक्टली, इट मींस यूनिकली डिटरमाइंस द वैल्यू। डिटरमाइंस इट मींस सर्च, वी कैन सर्च। क्लियर? और उसको डिपेंडर और ये क्या डिटरमिनेंट और डिपेंडेंट के हिसाब से बोले ना, तो ए को डिटरमिनेंट बोलते हैं और बी को डिपेंडेंट बोलते हैं, क्योंकि बी किससे सर्च होगा, ए से, इसलिए डिपेंडेंट है। बी खुद से तो सर्च नहीं होगा ना। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप है तो आप खुद से अभी के लिए मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, आप अभी डिपेंडेंट हो आपके पेरेंट्स के ऊपर, तो आपके नाम में आपके पेरेंट्स का नाम आता है, उसका मतलब क्या हुआ, डिपेंडेंसी हुआ ना। तो आप डिपेंडेंट हो, आपके फादर डिटरमिनेंट है, उन लोगों ने आपके पेरेंट्स ने डिटरमिनेंट किया आपको। समझ में आया? इन टर्म्स ऑफ ए इज डिटरमिनेंट एंड बी इज डिपेंडेंट। क्लियर? जो लेफ्ट पार्ट है उसको डिटरमिनेंट बोलते हैं, और राइट पार्ट है उसमें सबसेट्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे नेम एसपीआई बैकलॉग है, तो उसको हम डिपेंडेंट बोलेंगे। So it can be also said as n is functionally dependent on m, or m functionally determines m। दोनों में वर्ड्स में सिर्फ कितना डिफरेंट है, डिपेंडेंट और डिटरमाइंस। डिटरमाइंस इसमें सर्च कर सकते हैं, डिपेंडेंट है ऐसा। तो लास्ट पॉइंट अच्छे से रीड कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। एक थर्ड पॉइंट और एक लास्ट पॉइंट अच्छे से समझ लीजिए। Now you have any question, then you can ask. सर Yes. सर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर जैसे कि रोल नंबर जो है टेंस टू कर रहा है नेम, और नेम जो है टेंस टू कर रहा है रोल नंबर, और फिर रोल नंबर जो है टेंस टू कर रहा है एसपीआई नंबर, और एसपीआई जो है टेंस टू कर रहा है बीएल। तो इस तरह से सर इसको जैसे कर सकते हैं, जो डिटरमाइन फंक्शन है वो सब डिपेंडेंसी शो कर रहा है, तो सर इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि नहीं? ब्रजेश, आप ऐसे बोल रहे हैं कि रोल नंबर टेंड्स टू नेम एंड नेम टेंड्स टू रोल नंबर, लेकिन सर वो दूसरा चैट बॉक्स में सर लिखे हुए हैं। क्या लिखे ब्रजेश? सर कैन कॉल इट द सेम वे, रोल नंबर टेंड्स टू नेम and roll number tends to SPI or SPI tends to BL. Yes, definitely we can say that but it's a different functional dependency.
वो दूसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी हो जाएगी। ठीक है, आप सही हो, वो कह सकते हैं। अभी आप होल्ड पे रखिए, क्योंकि बहुत सारी डिपेंडेंसी यहाँ पे हम एक ही टेबल में क्रिएट कर सकते हैं खुद से। जैसे रोल नंबर टेंड्स टू नेम, रोल नंबर टेंड्स टू एसपीआई, रोल नंबर टेंड्स टू बैकलॉग, नेम टेंड्स टू एसपीआई, नेम टेंड्स टू रोल नंबर, नेम टेंड्स टू बैकलॉग। बहुत सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है? थर्ड पॉइंट, m component of tuple distinctly determine the values of n component। ठीक है, वो हमें ध्यान रखना है, डिस्टिंक्टली डिटरमाइन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मल्टीपल वैल्यू। दूसरा पॉइंट मैंने ये जो बोला था कि x टेंड्स टू y हो तो x की दो वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू मिल सकती है, लेकिन x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू नहीं मिल सकती। वो चीज का भी हमें ध्यान रखना है। देन वी कैन से दैट फंक्शनल डिपेंडेंसी इज वैलिड। ठीक है, आप जो चैट में लिखे बहुत सारी, ठीक है, तो वो भी चेक करना पड़ेगा कि वो फंक्शनल डिपेंडेंसी वैलिड है कि नहीं। सपोज यहाँ पे देखो, ब्रजेश ने लिखा है कि रोल नंबर टेंड्स टू नेम, वो वैलिड है अभी। ठीक है, रोल नंबर टेंड्स टू एसपीआई, वो भी अभी वैलिड है। एसपीआई टेंड्स टू बैकलॉग, उसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि एसपीआई बैकलॉग को अच्छी तरह से यूनिकली डिटरमाइन कर सकता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल एसपीआई 8 है तो बैकलॉग की वैल्यू 1 है। ठीक है, हमारे एग्जांपल में। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है ना कि एसपीआई 8 है और दूसरे स्टूडेंट्स को 2 बैकलॉग आई, तो एसपीआई की एक वैल्यू के लिए हमें बैकलॉग की 2 वैल्यू मिल रही है। उसका मतलब क्या हुआ? यूनिक वैल्यू नहीं मिल रही है, तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं कह सकते, वैलिड नहीं कह सकते। इनवैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी बोल सकते हैं, वैलिड नहीं बोल सकते। क्लियर? रविंद्र, बीएल मींस बैकलॉग, एट्रीब्यूट्स नेम है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। Okay, let's move forward so you can get the ideas, because the functional dependency have some types. Okay, let's take another example. Bank, relation name is bank, account number, customer name, balance and branch. ये चार एट्रीब्यूट्स है, इसमें से हम फंक्शनल डिपेंडेंसी फाइंड करनी है। फंक्शनल डिपेंडेंसी कैसे फाइंड कर सकेंगे हम? थर्ड पॉइंट प्रीवियस वन का, यूनिकली m टेंड्स टू n, m यूनिकली डिटरमाइन कर सके n को, तो ही मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अकाउंट नंबर टेंड्स टू कस्टमर नेम, then it is one functional dependency. Can you write it into a chat box? My screen is visible to you, I think. Yes. Now all of you try to write down the functional dependency for the bank. Okay, let me check the chat box. Account to customer, Manali, yes, it's a valid functional dependency. Account tends to balance, yes, it's again very valid functional dependency. Account tends to customer name, balance and branch, yes, Ravi, valid. Account number tends to customer name, yes, Abhishek Tiwari, it's a valid functional dependency. Sonu Yadav, account number to customer name, yes, it's valid. Account to customer name, yes, it's valid. Customer name is functional dependency. What? I cannot understand that statement, Umang. Om Prakash, Sir. yes. सर आपने जो बोला है ना अकाउंट नंबर और कस्ट नेम में, तो यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी कस्ट नेम और फंक्शनल डिटरमिनेंट वो अकाउंट नंबर सर, वो हम बोला। ठीक है, अरे मैं तो एक एग्जांपल दिया था आपको। पूरे टेबल में से आपको पूरे टेबल में से मल्टीपल फंक्शनल डिपेंडेंसी कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो फाइंड करना था। ऐसा नहीं कि अकाउंट नंबर से ही फाइंड करना है। ठीक है, आप कस्टमर नेम टेंड्स टू बैलेंस भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अगर वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है तो।
ब्रजेश ने लिखा है। बट सर अगर नेम से तो सर चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि नेम का तो एक ही नेम का कई कई बैलेंस भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। यस, दैट्स आई एम एक्सपेक्टिंग राज। और एक ही नेम के कितने लोग हो सकते हैं? यस यस अभिषेक, गुड, यस एक्सीलेंट, दैट आई वांट आंसर फ्रॉम यू गाइस कि कस्टमर नेम टू बैलेंस फंक्शनल डिपेंडेंसी बोल सकते हैं लेकिन वैलिड नहीं बोलेंगे, इनवैलिड है, क्योंकि एक भी वैल्यू नहीं मिल सकती, इसलिए अकाउंट टेंड्स टू कस्टमर नेम, अकाउंट टेंड्स टू कस्टमर नेम, अकाउंट टेंड्स टू ब्रांच। ओके, ऑलमोस्ट सभी ने आंसर सही दिया है। लेट्स सी इन अ पीपीटी। Yes, functional dependency. Account distinctly identifies other attributes. Thus, account tends to customer name, balance, comma branch is the valid functional dependency. Yes, आप दूसरी भी functional dependency बना सकते हो। कैसे? Like account number to customer name, account numbers to customer name, comma balance, account number to balance, comma branch, account number to branch। लेकिन ये सुपर सेट हो गया ना, इसमें से आप कोई भी कॉम्बिनेशन के फंक्शनल डिपेंडेंसी बना सकते हो। Am I right? सर Yeah. Yes, sir. सर वो जो कस्टमर नेम है तो उसको भी सर हम लोग ये डिपेंडेंट बना सकते हैं ना? कस्टमर नेम में नहीं बना सकते क्योंकि वो प्राइमरी, यस अरमान ने सही लिखा है, मोस्ट ऑफ द टाइम वी टेक प्राइमरी की, यस एग्जैक्टली, क्योंकि यूनिक वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी? प्राइमरी की से। अगर कस्टमर नेम लेंगे तो वो प्राइमरी नहीं होगा। जैसे आपके क्लास में ही देख लो, मनीष बोलूंगा तो 2 खड़े होंगे, राज नहीं क्या, राहुल बोलूंगा तो 2 नेम होंगे। अभिषेक सर। यस अभिषेक भी है, 3 है हमारे क्लास में तो 3 है। तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी में मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी में लोचा हो जाएगा। मैं ऐसा बोलूं अभिषेक का बैलेंस है $1 बिलियन, तो वो दोनों तिवारी और दूसरा कौन है? वो दोनों खुश हो जाएंगे ना, अभिषेक सिंह राजपूत, या दोनों खुश, अभिषेक सिंह और अभिषेक तिवारी दोनों खुश हो जाएंगे ना। तो कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई हुआ? नहीं हुआ ना, इसलिए वो नहीं ले सकते कस्टमर ने। अब ऐसा मैं बोलूं कि अकाउंट नंबर 101 इज हैविंग $1 बिलियन, तो सपोज अभिषेक तिवारी का अकाउंट नंबर 101 है, तो वो यूनिकली आइडेंटिफाई हुआ। समझ में आया? इसलिए कस्टमर नेम यूनिकली नहीं ले सकते। राज ने और अभिषेक ने पहले करेक्ट आंसर दिया था कि कस्टमर नेम में ये हो सकता है। हाँ हो सकता है ना विकी, क्योंकि ब्रांच और नेम, किसी के तो फादर नेम सर नेम भी सेम हो सकता है। मैंने कई बार भी देखा है क्लास में, लेकिन रेयर केस में हो सकता है। लेकिन डेटाबेस के लिए तो वो हमें जनरल वे में सब कुछ कंस्ट्रेंट देखना पड़ता है ना। फॉर एग्जाम्पल अभिषेक तिवारी कितने स्टूडेंट्स होंगे? ठीक है, उन दोनों ने एक ही ब्रांच में MEFGI मारवाड़ी में BOI में अकाउंट ओपन किया है, तो सभी वैल्यू सेम ही है। उसके फादर का नाम सेम है, उसके बैलेंस भी सेम है, ब्रांच भी सेम है, तो कहां से मैं दोनों अभिषेक को डिटरमाइन करूंगा? उसके अकाउंट नंबर से। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने सुपर सेट लिखा है, कस्टमर नेम कोमा बैलेंस कोमा ब्रांच। यू कैन राइट द फंक्शनल डिपेंडेंसी, अकाउंट नंबर टेंड्स टू कस्टमर नेम, अकाउंट नंबर टेंड्स टू बैलेंस, अकाउंट नंबर टेंड्स टू ब्रांच, और एनी कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन करना आता है। ठीक है, सही है सर? या कस्टमर सर तो इसका जो अकाउंट नंबर है तो एक पार्टिकुलर बैंक के लिए हुआ ना? यस सर इसका अकाउंट नंबर तो दूसरे बैंक में भी हो सकता है, तो ये तो मतलब उसका मतलब ज्यादा हो जाएगा, मतलब 2 अकाउंट हो जाएगा, फिर उस वक्त तो नहीं बोल सकते ना? उस वक्त नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या दिया है ऊपर टेबल, उसके हिसाब से बोला है ना मैंने। यस ठीक है, फाइंड द फंक्शनल डिपेंडेंसी उस टेबल पे दिया है। अगर आपको 2 टेबल दिए, 2 कॉलम दिए, देन अगेन वी नीड टू थिंक। अगर आप जो बोल रहे हैं ना ऐसा कब होगा? ऐसी सिचुएशन जब आएगी तब हमें खुद से कुछ डिफरेंट सोचना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये जो सिचुएशन दिया है मैंने, बैंक का रिलेशन दिया है, उसमें 4 कॉलम है, 4 एट्रीब्यूट और 2 टपल, उसके हिसाब से हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी फाइंड की है। अगर मैं इसमें कुछ ऐड और कर दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं GR नंबर ऐड कर दूं, ठीक है, तो GR नंबर भी आपका यूनिक होता है, तो आप GR नंबर टू कस्टमर नेम ऐसा भी फंक्शनल डिपेंडेंसी दूसरा यूनिकली बना सकते हो।
ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ना, एनरोलमेंट नंबर बनाओ तो तीसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो अगेन आई एम सेइंग दैट एंड कीप दिस थिंग इन योर माइंड, इट डिपेंड्स ऑन अ सिचुएशन। आपको टेबल क्या क्या दिया उसके ऊपर से आपको फाइंड करना है कि दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी आर वैलिड और नॉट। क्लियर? कैन आई गो अहेड? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Okay. Let's see types of functional dependency. Let me see the time. It's 10:23 or so. 23. Okay. Let's stop from these types of functional dependency because it requires more than 15 minutes. So I am stopping this topic. If I am not wrong, your lecture is finished on 10:30. Yes, 9:30 to 10:30. Yes, yes. तो अभी कह रहे हैं आज के लिए अभी इतना रखते हैं और बाद में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी के टाइप्स और उसके बाद का जो भी है, ठीक है।